ایران نے دمشق میں اپنے قونصل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر 300 کے قریب ڈرون اور کروز میزائل داغ دیے۔ ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملوں کے بعد اردن کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی اشارہ دے دیا۔ ایران نے اردن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، کیونکہ ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن کے طیاروں نے تباہ کیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو بھی اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسرائیل نے ایرانی حملے پر سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست کر دی۔ اجلاس آج ہونے کا اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی حملوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے سلامتی کے لیے ہمارا عزم آہنی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رخ موڑ دیا۔ کویت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رخ موڑ دیا، جبکہ سوئس انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بھی تل ابیب کے لیے اپنی سروس معطل کر دی۔ ادھر امریکہ کی یونائیٹڈ ایئر لائن نے نیو یارک سے تل ابیب کے لیے متعدد فلائٹس منسوخ کر دیں۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد اقوام متحدہ، سعودی عرب، پاکستان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دیا ہے، جبکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے خطے میں عدم استحکام کے خطرے سے خبردار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ تمام افریقین تحمل سے کام لیتے ہوئے کشیدگی ختم کرنے کی طرف بڑھیں۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اسرائیل پر حملوں پر ایران کے مختلف شہروں میں جشن منایا گیا۔ تہران میں شہری ایران کے پرچم لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ بیروت میں بھی اسرائیل پر حملے کی خوشی میں ریلی نکالی گئی۔ میزائل اور ڈرون حملوں پر فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ کے باہر جشن منایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیساکھی کا تہوار امن و سلامتی، خوشیوں اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان کو اپنے ثقافتی ورثے میں تنوع پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سکھ برادری کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بیساکھی محبت اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ بیساکھی کے رنگا رنگ تہوار کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سکھ برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیسی مہینہ بیساکھی بہار کے موسم کی علامت، محبت اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان مختلف عقائد اور ثقافتوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ پنجاب حکومت نے بیساکھی تہوار کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بیساکھی تہوار پر اپنے پیغام میں کہا، بیساکھی پنجاب کی منفرد ثقافت کی پہچان ہے۔ درانتی سے گندم کی سنہری فصل کاٹ کر بیساکھی کا آغاز ہوتا ہے تو خوشیاں ہر سو پھیل جاتی ہیں۔ پنجاب میں بیساکھی منانے کے لیے آنے والے سکھ بہن بھائیوں کو جی آیاں۔
गड़ी खुदा बख्श में साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी पर जलसा। मुल्क भर से लाखों की तादाद में जयालों की शिरकत। सदर जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जयालों से खिताब। वज़राए आला सिंध बलोचिस्तान मुराद अली शाह और मीर सरफराज बुगटी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कायदे अवाम भुट्टो के जज्बे को मशाल राह बनाकर नए अज़्म को आगे बढ़ाना होगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम में कहा कि आज का अजीम शान जलसा आम एक बार फिर गरीब मेहनत कश अवाम में भुट्टो इज़्म की वसी मकबूलियत का आगाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आइए आज नए अज़्म के साथ भुट्टो के नजरिए और उसूलों से अपनी वाबस्तगी का इयादा करने के लिए पुरकार लाएं। ओपोजिशन लीडर और पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई बहुत जल्द रहा होंगे, ये हुकूमतें खत्म होगी। कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उमर अयूब का कहना था कि मुल्क भर में जलसे करेंगे, हमारी तहरीक हुकूमत को पाश पाश कर देगी। फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमतें रेत के पहाड़ हैं। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे 106 कैदी हैं। फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। एफबीआर ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक चंद रोज तक टैक्स नादहिंदा ताजरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। जिन ताजरों और सनतकारों को नोटिस भेजे जाएंगे उनका रहन सहन शाहाना अखराजात उनके टैक्स डेटा से मुताबिकत नहीं रखता। उन ताजरों का टैक्स चंद हजार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों से परदेसी उदास चेहरों के साथ वापस पहुंच रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी मुलाजमीन अहले खाना के हमरा वापस पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से 5 मैचेस की टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पीसीबी हुकाम ने न्यूजीलैंड टीम का इस्तकबाल किया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इदारे में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। जराये के मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोर्ड में सियासी और सिफारिशी भर्तियों की फहरिस्त के अलावा मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदा और तनख्वाह की तफसीलात भी तलब कर ली। वायदा जवाबत के बगैर भर्ती होने वालों की तालीमी असनाद को भी चेक कराया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर 2 नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। वाकया मुंबई के इलाके बांद्रा में सलमान खान की रिहाइश का गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह 5 बजे पेश आया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह अफराद ने 3 राउंड्स फायर किए। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई और एहलकारों को तैनात कर दिया। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। अदाकारा मीरा का बाजू फ्रैक्चर हो गया। मीरा के इस हवाले से कहना है कि दौरान शूटिंग गिरने की वजह से उनके बाजू में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर्स ने 10 रोज के लिए आराम का मशवरा दिया है।
अदाकारा दुरे फिशा सलीम ने पसंद की शादी के नुकसानात का जिक्र कर दिया। कहा, मेरी नज़र में पहला नुकसान ये है कि शादी करने वाले दोनों अफराद आसानी से मिल जाने पर एक दूसरे को ज्यादा संजीदा नहीं लेते। नई शादी के इब्तदाई 2 माह की चाहत के उनसे भी बाकी नहीं होता। पसंद की शादी के हवाले से दूसरा नुक्ता रखते हुए अदाकारा ने कहा कि पहले काफी जान पहचान की वजह से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में आज गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तूफानी बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए की जानिब से कहा गया है कि आज पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, बालाई पंजाब के अजला में ज़ालाबारी के भी इम्कानात हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी का आगाज हो गया। माड़ीपुर, गुलिस्तान जौहर एयरपोर्ट और मलीर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। के बाकायदा आगाज में सबसे पहले बात करते हैं। ईरान ने दमिश्क में अपने काउंसिल खाने पर हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और मिसाइल दाग दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी की, जबकि इसराइल ने ईरान के मुतादिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फिजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। जमीन से जमीन पर मार करने वाले दर्जनों ईरानी मिसाइलों में से कुछ मिसाइलों से इसराइल में हमला हुआ है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने भी तस्दीक की कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले में एक लड़की जख्मी हुई। खतरात अभी टले नहीं हैं और फोर्सेस खतरात का मुकाबला कर रही हैं। इससे कबल इसराइल की जानिब से कहा गया था कि दर्जनों ड्रोन ईरान से रवाना हुए और इसराइल के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के तैयारे रवाना किए। उन्होंने अवाम से होशियार रहने की अपील करते हुए कहा कि होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें। हम कोशिश करेंगे कि मिसाइलों को इसराइल की सरजमीन तक पहुंचने से रोका जाए। उधर यमन के हुजियों, लुबनान की हजबुल्ला और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से भी इसराइल पर हमले की इतलात हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे BBC के मुताबिक ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में इसराइल पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि यह हमले 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब है। बयान में कहा गया है कि ईरान के इसराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉम्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि ईरान की फौजी कार्रवाई दुश्मन में ईरान के सिफारती अहाते के खिलाफ इसराइल की जारहियत के जवाब में की गई। मामला अब खत्म समझा जा सकता है। ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान पर हमला किया गया तो मजीद शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फिजाई हुदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान किसी भी फौजी जारहियत के खिलाफ अपने जायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद दफाई इक़दाम करने से दरेग नहीं करेगा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों पर फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर जश्न मनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। वीडियो में बड़ी तादाद में लोग लब्बैक या अक्सा के नारे लगा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलेंगे, ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों पर फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर जश्न मनाया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर हमलों के बाद उर्दन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इशारा दे दिया है। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ईरान के मुताबिक ड्रोन्स को उर्दन के तैयारों ने तबाह किया था। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को भी इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा देते हुए कहा कि अमरीका ईरान के मफादात को नुकसान न पहुंचाए। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारे गजा से निकल गए। गजा जंग के बाद यह पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं है।
ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता किया और ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू को बताया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान के इसराइल पर हमले के बाद गुज़श्ता चंद घंटों में दूसरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को बताया कि इसराइल ने ईरान के गैर मामूली हमलों के खिलाफ अपने दिफा और इस नौइयत के हमलों को पसपा करने की काबिल जिक्र सलाहियत का मुजाहरा किया है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अपने दिफा का मुजाहरा करके इसराइल ने अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इसराइल की सलामती को खतरे से दोचार नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब इसराइल ने ईरानी हमले पर सलामती काउंसिल के इजलास की दरखास्त कर दी है। इसराइल ने ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान भी किया है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया है। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा आज ईरान और उसकी प्रॉक्सीज ने इसराइल की फौजी तंसीबात पर हमला किया। इसराइल पर दागे गए तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन और मिसाइल अमरीकी मदद से मारे गए। जो बाइडन का कहना था कि ईरान हमलों से मुतालिक कौमी सलामती टीम से ताज़ा सूरत हाल मालूम की है। ईरान और उसके आलाकारों के खतरात के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। इसराइल के सलामती के लिए हमारा अज़्म आहनी है। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज शाम 4 बजे होने का इम्कान है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार करते हुए अफ्रीकैन से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर दिया है, जबकि अमरीका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने इसराइल का दिफा करते हुए खत्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि तमाम अफ्रीकैन तहम्मुल से काम लेते हुए कशीदगी खत्म करने की तरफ बढ़े। पाकिस्तान कई महीनों से गजा में जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर देता आया है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि खित्ते में दुश्मनी को रोका जाए और गजा में सीज फायर किया जाए। 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले को एक बड़ी कशीदगी का पेश खैमा करार दिया था। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन कायम करने में नाकाम हुई। ताज़ा वाक़यात सफारतकारी की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। हम तमाम अफ्रीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ईरानी हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए अपने पैगाम में कहा कि खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ने के हक में नहीं। मशरक़ी वस्ता और दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने खित्ते में फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और जंग के खतरात से बचने के लिए तमाम फ्रीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक एक बयान में सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि अगर तनाज़े बढ़ाया गया तो संगीन नताइज होंगे। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक ने इसराइल पर ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इन हमलों से खत्ते में तनाव और अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। ईरान ने एक बार फिर यह जाहिर किया है कि वो अपने ही खत्ते में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि बरतानिया इसराइल की सलामती और उर्दन और इराक समेत अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम सूरत हाल को मुस्तहकम करने और मजीद कशीदगी को रोकने के लिए फौरी तौर पर काम कर रहे हैं। कोई भी मजीद खून रेजी नहीं देखना चाहता। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी मजम्मत करते हुए कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये हमले एक बार फिर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। हम इसराइल के हमलों से अपने और अपने लोगों के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, स्पेन, डच, दानिश और दीगर ईरानी हमलों की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी ने कहा है कि पहली बार ईरान और इसराइल की बराह रास्त महाज आराई हुई है। जंग अगर खित्ते में फैली तो पाकिस्तान पर भी उसके असरात होंगे। जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं है। कहा ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, जिसके बाद ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था।
ईरान ने सिर्फ फौजी टारगेट्स पर हमले किए, शहरी तंसीबात पर नहीं। ईरान का मकसद सिर्फ इसराइल को खबरदार करना था। इसराइल चाहेगा कि अमेरिका जंग में मुलविस हो जाए और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अवाम की राय इसराइल के खिलाफ हुई है। अमेरिकी अवाम भी चाहते हैं कि गाजा जंग खत्म होनी चाहिए। मलीहा लोधी ने कहा कि खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं है। सफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मजीद एक्शन से रोका जाए। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के असरात हमारे खित्ते पर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि असल सफारती कोशिशें अमेरिका की तरफ से होंगी कि जंग बढ़ न जाए। लगता नहीं कि चीन और रूस ईरान की मजम्मती करारदाद की हिमायत करें। चीन और रूस भी चाहेंगे कि न सिर्फ गजा बल्कि मशरिक वस्ता में भी जंग बंद हो। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफिका जवाब आना चाहिए। मलीहा लोधी ने कहा कि तनाव बढ़ता है तो इक्तसादी असरात पाकिस्तान और दीगर मुल्कों पर पड़ने से चैलेंज बढ़ जाएंगे। अमरीकी इंतजामिया में भी एहसास है कि जंग बढ़ती है तो इसका अमरीका को फायदा नहीं होगा। और नाज़रीन, ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया है। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया, जबकि स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अबीब के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी है। उधर अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अबीब के लिए मुतादिद फ्लाइट्स मंसूख कर दी। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद कराची के लिए तुर्किश एयर की परवाज़ दरमियान रास्ते से वापस चली गई, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर के लिए परवाज़ों ने तवील तरीन रूट इख्तियार किया। एविएशन जराये के मुताबिक परवाज TK 708 को इराक की फिजाई हदूद से वापस बुलवाया गया। ये परवाज आज दोपहर तवील रास्ते से रिशेड्यूल की गई, जबकि कराची से तुर्किश एयर की परवाज PK 709 की शाम 6 बजे रवानगी मतवक्के है। तुर्किश एयर की परवाज ने इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तवील तरीन रूट इख्तियार किया। परवाज TK 710 और 711 ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया के रास्ते ऑपरेट की गई। परवाज TK 714 रिवायती रास्ते से इस्तांबुल से लाहौर पहुंच चुकी थी, जबकि लाहौर इस्तांबुल की परवाज TK 715 ने भी ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का रूट अपनाया। ईरान के इसराइल पर हमले की वजह से तुर्किश एयर का फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया और भारत, बांग्लादेश, ईरान, इराक, चीन और कई मुल्कों की परवाजें दरमियान रास्ते से वापस हुई। भारत, बांग्लादेश और दीगर मुल्कों से भी परवाजें ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और जॉर्जिया से होते हुए मंजिल पर पहुंच रही है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया हुआ है। सदर जरदारी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कहते हैं, बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। कुछ दोस्त समझते थे कि मैं पार्टी को नहीं चला सकूंगा। हमारे नसीब में नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी हुई है। हमारे पास दिमाग की कमी है, हमें सब कुछ सोचना और समझना होगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों की ताकत से सदर बना हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 साल से लड़ रही है। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मैं हर काम सोच समझ कर करता हूं ताकि मुल्क को नुकसान ना हो। अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ सियासतदान धांधली का बहाना बनाकर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। वो सियासतदान अपनी अना के लिए मुल्क कौम की किस्मत के साथ खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर खिताब। कहते हैं, वो मुल्क में PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जुल्फिकार भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया, अवाम को वोट की ताकत दी। शहीद भुट्टो ने मजदूरों को ताकत दी, मुल्क को एटमी पावर बनाया। शहीद भुट्टो ने अवाम को आवाज दी और किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। सदर जरदारी ने भुट्टो के कत्ल पर अदालती रेफरेंस भेजा। सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गया कि कायदे अवाम से ना इंसाफी हुई और फेयर ट्रायल नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम 2 सूबों में हुकूमत कर रहे हैं। दोनों सूबों में जियाले वज़राए आला हैं। चेयरमैन सेनेट भी जियाला ही मुंतखब हुआ है। हमने आइन बहाल किया, NFC के जरिए सूबों को हक दिया। पीपल्स पार्टी तजवीज दे रही है कि तमाम सियासतदान मेज पर बैठकर मफाहमत का रास्ता निकाल कर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें।
धरना या गाली गलोच की सियासत से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा और इससे अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुल्क में मुआशी बहरान है और अवाम परेशान है, जिस पर सियासतदानों और हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए कि महंगाई के खिलाफ अपना अपना किरदार अदा करें। हम विफाक के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। हमने मिसाक जमहूरियत पर 90% अमल किया, जिससे जमहूरियत मुस्तहकम हुई और आवाम को तारीखी फायदा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिसाक जमहूरियत का 10% हिस्सा अदलिया के इस्लाहात पर मुश्तमिल है, जिसके लिए हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कायदे अवाम भुट्टो के जज्बे को मशअल राह बनाकर नए अज़्म को आगे बढ़ाना होगा। और नाज़रीन, कोट लखपत जेल में जख्मी मगर कौन, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर की कोट लखपत जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला करने वाला आमिर तांबा कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गया। इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कोट लखपत जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलविस आमिर तांबा पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से जख्मी आमिर तांबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इलाके को घेरे में लेकर शूटर्स की तलाश शुरू कर दी है। जमात अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर मौलाना हाफिज अब्दुल गफार रोपड़ी, प्रोफेसर अब्दुल मजीद मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, मौलाना शकील रहमान ने मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा किया कि वो फलस्तीन की आज़ादी और इसराइल के खिलाफ मुश्तरका लाएहामल तैयार करें। बैतुल मक़दस की आज़ादी हम पर फर्ज हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल तय करें। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी हम पर फर्ज हो चुकी। मुल्क दुश्मन अनासर को भारतीय सपोर्ट है। हुकूमत गफलत का मुजाहरा ना करे। ये बात जमात अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर मौलाना हाफिज अब्दुल गफार रोपड़ी, प्रोफेसर अब्दुल मजीद मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, मौलाना शकील रहमान नासिर, हाफिज अब्दुल वहीद, शाहिद कादरी, मोहम्मद फयाद और दीगर उलमाए कराम ने की। मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा किया कि वो फलस्तीन की आज़ादी और इसराइल के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल तैयार करें। तफरीक का फायदा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को होगा। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी हम पर फर्ज हो चुकी है। बलोचिस्तान में जिला नौशकी मुसाफिरों समेत 11 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल करने की शदीद मजम्मत करते हैं। कहा कि ये कार्रवाई मुल्क दुश्मन अनासर जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, इनकी मजदूम और जालिमाना कार्रवाई है। ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे हमेशा हमारा अजली दुश्मन का हाथ होता है। कई सालों से बलोचिस्तान को इसने हदफ बना रखा है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो दहशतगर्दी के वाकया की तहकीकात करे और जो मुल्क भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हाफिज अब्दुल गफार रोपड़ी ने लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए इनके लिए सब्र और दहशतगर्दी में जाँ बाक होने वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड फरीद इकबाल ने चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी के बाद बोर्ड के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तनवीर मुश्ताक को विसाखी मेलाद के दौरान फराइज में गफलत बरतने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये अहकामात उन्होंने गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में विसाखी मेला के इंतजाम का मुआयना करते हुए मेडिकल कैंप के इंतजाम देखने, डॉक्टर की अदम मौजूदगी और अपने कमरे में सोए पाए जाने के मौके पर किया। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नजीर अचानक गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल पहुंच गए। सीईओ पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर आसिम अल्ताफ भी हमरा थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अफरीन दीगर अमले ने सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर को अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात से आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात मजीद बेहतर करने के लिए दौरे किए जा रहे हैं। इमरजेंसी, मेडिकल, गायनी वार्ड्स और फार्मेसी भी गए। मरीजों से तिब्बी सहूलियात का पूछा। मददगार काउंटर पर कोई अमला मौजूद न था। वजीर सेहत का इजहार बरहमी स्टेट ऑफ द आर्ट
पैराप्लेजिक सेंटर का भी मुआयना किया। मरीजों को अद्वियात न मिलने की शिकायत पर सूबाई वजीर सेहत का फौरी नोटिस। एक रिटायर्ड मुलाजिम की मुफ्त टेस्ट न फराहम करने पर सूबाई वजीर सेहत को शिकायत। ख्वाजा इमरान नजीर ने अद्वियात टेस्ट की सहूलत मुफ्त न फराहम करने पर डॉक्टर आसिम को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वजीर सेहत की जानिब से एमएस को वार्निंग जारी। एमएस को 1 माह में अस्पताल के मामलात बेहतर करने की हिदायत। 1 माह बाद दोबारा अस्पताल का दौरा करूंगा। ईद की छुट्टियों में अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन। तमाम अस्पतालों की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए सर्वेलेंस की जा रही है। ख्वाजा इमरान नजीर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के डायरेक्टर के खिलाफ संगीन नोयत के इल्जामात पर मुबनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं। एडवोकेट शहबाज अकमल चंद्रान की तरफ से सेक्रेटरी डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब को मौसूल करवाई जाने वाली दरखास्तों में मौकफ इख्तियार किया गया है कि डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ मुजरमाना जहनीत का हामिल अफसर है, जिसे थाना गुलबर्ग ने गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने पर गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ लाहौर और सियालकोट एंटी करप्शन ने हजारों गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन पर मुकदमा भी दर्ज कर रखे हैं। डायरेक्टर आसिफ पर मातहत खातून को हिरासा आला अफसरों से बदतमीजी करने की मुतादिद शिकायत सामने आ चुकी हैं। डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ के खिलाफ साहिवाल में गाड़ियों की बोगस रजिस्ट्रेशन, डीजी के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने और एडीआर के जरिए बोगस तरीके से गाड़ियों की तब्दीली मलकियत के अमल की सरपरस्ती करने की भी मुतादिद तहरीरी शिकायत सामने आ चुकी हैं। दरखास्तों पर महकमा ने छानबीन शुरू कर दी है। कबायली इलाकों के पहाड़ों पर सर्द मौसम के खूबसूरत मनाजर अल्लाह का खास करम है। ईद की छुट्टियां और लाहौरी एंजॉय ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। लाहौरियों ने लजीज खानों के साथ पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। कहीं बारिश तो कहीं याला बारी। शहरियों के चेहरे खिल उठे। चेयरलिफ्ट में शहरियों का रश। ठंडी ठंडी आइसक्रीम के मजे भी लेते रहे। बालाई इलाकों में मौसम सर्द। सयाहों ने फैमिलीज के हमरा मरी, नथिया गली और दीगर तफरीही गाहों का रुख कर लिया। लाहौर से फैमिलीज के हमरा सैर तफरी करने के लिए जाने वाले मलिक रिजवान और मलिक उमैर ने वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईद की छुट्टियों में फैमिली के साथ एंजॉय करने का अपना ही मजा है। हसीन वादियां, खूबसूरत मंजर, दिलकश मौसम और अपनों का साथ किसी नेमत से कम नहीं है। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के सरपरस्त आला और आलिम अंजुमन खादम के सरबराह मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने कहा, ईरान का इसराइल पर हमला मुस्लिम उम्मा के लिए तकवीत का बायस बनेगा। इसराइल आलमी दहशतगर्द है। आपको बताते चलें कि मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के सरपरस्त आला और आलमी अंजुमन खदामुद्दीन के सरबराह मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने कहा कि ईरान का इसराइल पर हमला मुस्लिम उम्मा के लिए तकवीत का बायस बनेगा। इसराइल आलमी दहशतगर्द है। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के सरपरस्त आला और आलमी अंजुमन खदामुद्दीन के सरबराह मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने कहा, ईरान का इसराइल पर हमला मुस्लिम उम्मा के लिए तकवीत का बायस बनेगा। इसराइल आलमी दहशतगर्द है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरपरस्त आला मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती सरबराह आलमी अंजुमन खुदामुल दीन मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने अपनी जारी करदा वीडियो बयान में कहा है, ईरान का इसराइल पर हमला मुस्लिम उम्मा के लिए तकवीत का बायस है। इसराइल आलमी दहशतगर्द अमेरिका व भारत का बगल बच्चा है। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पंजाब इसराइल पर ईरानी हमले को कदर की निगाह से देखती है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहमद अली सानी और मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पंजाब के अमीर मौलाना पीर मोहम्मद हसन नासर ने सूबाई तर्जमान मौलाना अब्दुल हफीज कोकर की राइजगाह पर ईद मिलन पार्टी से खिताब में कहा। इन्होंने कहा कि रूस और चीन के बाद हुकूमत पाकिस्तान को भी इसराइल के खिलाफ दो टोक मौकफ अपनाना चाहिए। अपना जाती इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए बेगुनाह फलस्तीनी बूढ़े बच्चों और औरतों की असमत गर्दी का बदला लेने के लिए मुतहिद हो जाना चाहिए। इस मौके पर तर्जमान पंजाब कारी मियां मोहम्मद अजीम, रियाज अनवर, मौलाना शफीक उल हसन मुआविया, अलामा इमदादुल्लाह डोगर, मौलाना अबू बकर असद, काजी अब्दुल अजीज शाकर, महर मोहम्मद रियाज कसूरी, हाफिज मोहम्मद आसम अजीम मदनी, मौलाना अब्दुल हलीम जजदानी, हाजी शेर अहमद मुगल कारी, अब्दुल्ला हकान खान, अब्दुल जब्बार खान व दीगर हजरात ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
रोटी नान की कीमत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गरीब दोस्त फैसला। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफी हैदर ने रोटी नान की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए, नान 120 ग्राम की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। तर्जुमान डीसी लाहौर के मुताबिक जिला भर में रोटी नान की कीमत का इतलाक फिल 4 होगा। गंदुम के बेहतर फसल, रसद और कीमत के पेश नजर महकमा खुराक की सिफारिश पर नई कीमतों का तयन किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में आज गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तूफानी बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए की जानिब से कहा गया है कि आज पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश मतवक्के है। डीजी खान और कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाब के इम्कानात हैं, जबकि मरी और गिलियात में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। बालाई पंजाब के अजला में यालाबारी के भी इम्कानात हैं। पीडीएमए की जानिब से हिदायत की गई है कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। ईद पर परदेसियों की वापसी का सफर मौसमी तब्दीली से मुतासिर हो सकता है। लियाकतपुर और बहावलपुर से लाहौर आने वाले मुसाफिर खास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी का आगाज हो गया। माड़ीपुर, गुलिस्तान, जौहर एयरपोर्ट और मलीर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में आज गैर मामूली बारिश का इम्कान नहीं है। मगरबी सिस्टम के जेर असर आज हल्की बारिश होने का इम्कान है। शहर में आज हल्की बारिश के साथ आंधी चलने का भी इम्कान है। बारिश 15 अप्रैल की सुबह तक वक्फे से जारी रहेगी। बारिश के बाद दर्जा हरारत में भी कमी मतवक्के है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को दाखिल होगा। दूसरे सिस्टम में हवाएं बलोचिस्तान के साहली इलाकों से कराची में दाखिल होंगी। दूसरे स्पेल के जेर असर कराची में तेज बारिशें होने का इम्कान है। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।